Yeah. Okay. So, good evening. Good evening, sir. Okay. I have a pleasure in welcoming Sri Govind Bhai Dholakia, or popularly known as Govind Kaka. He runs the SRK Group, is the founder and MD of the SRK Group of Industries. SRK is one of the largest diamond cutting and polishing companies in the world, headquartered in Surat. And the best thing to say about Govind Bhai Kaka is he does not have degree, he does not have maybe a big pedigree or an inheritance, but has created a 3,500 crore empire. And it's a very interesting story, his own way of expressing, and how he built up the empire, and how his very unique philosophy of handling people and managing enterprises. He has traveled around the world and around India. And it's a very interesting, marvelous story which he will record. Only one small thing is, we also have friends from the faculty development program also attending, so welcome to them also. Okay. And let me also introduce Nirav. Good evening to all of you. To my straight, Dr. Ashwin Desai. He is the ex-dean of the Comparative Literature Department of Veer Narmad South Gujarat University and associated with the SRK Group since more than 10 years. It's my pleasure to introduce Mr. Lavji Badshah, who is a real estate entrepreneur of Surat and like one of the real estate tycoon across Gujarat. Mr. Kamlesh Yagnik was the past president of South Gujarat Chamber of Commerce and IIT alumni, and is one of the coordinator of the SRK Knowledge Foundation, which we are running with respect to our CSR activities. To our last, one of the second generation, if you are talking about Mr. Shreyans Dholakia, he is the son of Mr. Govind Dholakia and one of the director who is taking care about the marketing and sales in CHQ at Mumbai office. To his right, Mr. Arpit Narola, who is the son of our MD and look after the training and induction and integration department in SRK. Followed by Mr. Akshay Dholakia, who is taking care about the procurement part for the rough purchase and one of the director of the group. It's a joint family. Can you guess how many members? 850. Barefoot, with nothing in hand, a boy of 13 left his small village in Saurashtra to help his family build a roof over his house. He had a gleam in his eyes as he landed in the diamond city, Surat. He took the job of an artisan and started to cut and polish diamonds. It was just the beginning of a journey larger than the dream. In the year 1970, he and two of his friends left their jobs to start a diamond cutting and polishing unit. He had nothing but the trust in his friendship, belief in God, and faith in his own abilities. Was it a destiny that was being cut and polished? Hard work and luck started to come together. It was impossible to stop this boy as he became a man. A small factory that only had 3 polishing wheels and 5 workers made way for a bigger factory in 1977. Growth was inevitable. It required a bigger organization to satisfy this man's dreams and aspirations. Year 1997, an establishment with more than 1,000 workers was started. He did not stop there. Year 2011, a state-of-the-art and one-of-its-kind facility in the world was unveiled.
that has a capacity of more than 4,000 workers. Man can believe in the impossible and he can achieve the impossible. The boy of 13 who started it all is Govind Dholakia, principal founder of Sri Ram Krishna Exports. SRK is one of India's leading diamond manufacturers with annual revenues of over $1 billion. SRK, where the biggest capital is the trust that they have earned over 5 decades. An ultra-modern, technologically advanced and fully air-conditioned facility at Surat. This facility is committed to green initiatives and is a member of the US Green Building Council. SRK Empire is one of the first in the world where the total workforce works in the comfort of an air-conditioned environment. SRK's motto has been simple: enhancing customer satisfaction, along with employees and their family members' welfare simultaneously. It has the most modern amenities to cater to its employees: a hygienic kitchen for nutritious food, a library for information needs, an audio-visual room for entertainment, an auditorium for training, a sports complex for fitness, and much more. Corporate social responsibility is considered a part of life. At SRK, the day begins and ends with a prayer. At SRK, rough stones are sourced from the best suppliers in the world. And from here starts a process that involves state-of-the-art technology and craftsmanship backed by relentless human passion for excellence. Govind Dholakia started it all, and now the second generation leadership is further taking SRK to newer heights. Sri Ram Krishna Exports has always been an ambassador to the diamond business and a trendsetter in many ways. SRK was one of the first to move into Bharat Diamond Bourse, where it has its headquarters. From BDB, SRK takes care of the sales and marketing of the final polished diamonds. SRK has a client base of hundreds of jewelry manufacturers, retail traders, chain stores, and small independent stores all over the globe. SRK has its presence in Hong Kong, China, Israel, Belgium, and USA. As a part of the forward integration process, SRK added one more feather in its cap by foraying into jewelry manufacturing, which creates superlative diamond jewelry. One for the expanding Indian domestic market and one for the international markets. Taking customer interaction to another level, SRK took another technological leap with srkexport.com. Here buyers can check all their diamond requirements and order accordingly. Currently, SRK has more than 1,000 active online customers doing business with utmost ease.
SRK has a comprehensive online presence with iPad, iPhone, BlackBerry and Android apps, creating a paperless and convenient environment for all. અમારે જે બિઝનેસ કરીએ છીએ ડાયમંડને અમે ભગવાન સમજીએ છીએ. A boy saw a dream. He wanted to make fine diamonds. Today, a team of 5,000 hard-working men is living that dream. SRK has come a long way, but the journey still continues. I am nothing, but I can do anything. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यां सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसाम् पश्यन्ति यां योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः. રિસ્પેક્ટેડ બીજુ સાહેબ અને આપ સૌ મળવા જેવા માણસો ગુજરાતીમાં કહે છે. Now I am speaking in Hindi. तो आप लोग जो मिलने जैसे है, हृदय का आदमी है, उनको आज मिलने को जो मौका मिला है वो हमारा सद्भाग्य है. ये सृष्टि में संयोग और वियोग एक नेचर कुदरत का खेल है. वो सबको मिलाता है, सबको अलग करते हैं. कोई बोले भगवान का धंधा बिजनेस क्या है, तो मैं बोलता हूं कि भगवान का एक ही काम है, ये सृष्टि में सबको इकट्ठा करे फिर अलग करे. मगर जिसको वो मिलाता है, जो संयोग होता है, उनका वियोग अवश्य होते ही है. बालक का जन्म हुआ, पुत्र हुआ या पुत्री, तो नहीं तो पुत्र माता को छोड़ के चले जाएंगे, अगर माता पुत्र को छोड़ के चले जाएंगे. पति पत्नी का मैरिज हुआ तो पति अगर पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो पत्नी पति को छोड़ के चले. जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्य है. मगर जब हमारा सद्भाग्य होता है तब मिलने जैसा सात्विक अच्छा आदमी, अच्छा वातावरण का संयोग होता है. जब हमारा दुर्भाग्य होता है तब हमको असामाजिक आदमी मिलते हैं, एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य होता है. मगर संयोग और वियोग तो होता ही रहता है. जैसे आज हमारा संयोग हुआ, ये सुखद है, हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम सब आज हमारा संयोग हुआ है. मित्रों, मेरे को मालूम नहीं, आई एम नथिंग, ये हमारा कंपनी का एक सेंटेंस है. आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग. तो ये कहां से पढ़ा हुआ नहीं है, ये हृदय से निकला हुआ है. 20, 25, 30 साल पहले हमारा जो की पर्सन के साथ में बात कर रहा था, तो मैंने सबको समझाया कि आप लोग यहां बैठे हैं, 10 आदमी को मैनेज करते हैं, कोई 100 को करते हैं, कोई 1000 को करते हैं, तो आप लोग मानते हैं हम बहुत ब्रिलियंट और होशियार है. नहीं, आपको चांस मिला है. तो आपके से भी बड़ा होशियार आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग मेरा हाथ नीचे काम कर रहे हैं. नहीं तो मैं ही समझता हूं कि आप जो यहां 50-60 की पर्सन बैठा है वो मेरे से ब्रिलियंट इसमें से बहुत है. मेरे को चांस मिला है तो मैं बॉस बन गया, इसलिए मैं यहां बैठा हूं, मैं जो बोलता हूं आपको सुनना पड़ता है. मैंने उनको ऐसा समझाया.
और उनको बोला कि आप अभी विचार करो तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे आपसे बहुत ब्रिलियंट और होशियार 50% से ज्यादा अंदर है, मगर उनको चांस नहीं मिला है, फर्क इतना ही है। तो आप कभी भी अभिमान मत करने का, ईगो मत करने का कि भाई आई एम समथिंग, यू आर नथिंग, ऐसे समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि आई एम नथिंग तो हम घर पे सो रहे, कुछ है ही नहीं कुछ करने का, तो क्या करें, क्यों काम करें हम, ये माथाकुट क्यों करें, हम कुछ है तो नहीं। नहीं, मैंने उनको समझाया कि ये सृष्टि में जो नेचर ने बनाया वो तो सही बनाया, बाद में हमने प्लेन बनाया, ट्रेन बनाया, बस बनाया, कार बनाई, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, सब कुछ बनाया। किसने बनाया? तो मानव ने बनाया, हमने बनाया। तो आई कैन, तो ऐसा अपना कॉन्फिडेंस रखने का कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर चाहूं तो। अभी मैं जब कॉलेज में जाता हूं लेक्चर देने को, तो वहां तो क्या सब लोग अभी कॉलेज में से बाहर निकले, संसार का उनको कुछ मालूम नहीं रहता। आप लोग तो बहुत प्रैक्टिकल है, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिशाली है, वो मेरे को मालूम है। तो वो लोग तो बच्चे लोग होते हैं, मैं उनको समझाता हूं कि आप ज्ञानी ज्यादा है कि अज्ञानी ज्यादा है, तो सब एकदम आश्चर्य में हो जाते कि हम एमडी हुआ, मास्टर डिग्री लिया और अज्ञानता की आप बात करते हैं। तो मैं उनको समझाता हूं कि 1 लाख आइटम हम ले ले, इसमें हमारी की 5 ओनली एक का है, बाकी 99,999 में हमारा अज्ञानता है, तो हम कुछ नहीं है। आप पहले ये समझो कि आई एम नथिंग। तो बोला कैसे? तो मैं उनको प्रैक्टिकल समझाता हूं कि ये हॉल में हम बैठे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये माइक बना सकते हैं, ये शर्ट बना सकते हैं, बूट बना सकते हैं, ये बेंच बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं। तो क्या हमारा अज्ञान कितना बड़ा हो गया? हम कुछ नहीं है। तो ये समझ के अपने को भी आगे बढ़ने का है। तो अभी आपने हमारी कंपनी के बारे में भी सुन लिया, गोविंद काका के बारे में भी सुन लिया। असल में ये गोविंद काका कौन है, तो मैं आपको एक दो हमारा गांव की बात समझाऊं तो आपको मालूम हो जाएगा। हमारा जो गांव है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में दूधाला करके गांव है। जब मैं 1949 में मेरा जन्म हुआ तो गांव की आबादी 700 की थी। हमारे गांव में 1 से 4 स्कूल चलती थी, 5, 6 और 7 बाजू का जो तालुका डिस्ट्रिक्ट लाठी है, तो लाठी में हमने चल के मैं 3 साल गया था, मगर 7वीं का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि सूरत डायमंड का बिजनेस शुरू हो गया, हीरा घिसने का। मेरा बड़ा भाई 6 महीने पहले सूरत पहुंच गया था, वो मेरे को लेके आ गए, तो मैंने 7 का एग्जाम नहीं दिया। तो बट आई कैन स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो वेरी वेल, but when I studied that time ABCD also not come to my school, because that time ABCD also starting from high school from 8, so I am not studying ABCD also my school, but I can speaking English very well. Why? So I have English only practical, because I am going to overseas from 77 every month. More than 200 times I go to Belgium, otherwise more than 100 country go to in the around the world. But my English without grammar. My English only practical. But you are very brilliant, very clever, so I ask or no, I don't know, but you see, grammar want in the around the world only British and India. Other rest of the country don't want grammar. Because British has his mother language and Indian has largest English language. That why only 2 countries want grammar. So, but my English running around the world, because when I go to France, Germany, I am speaking English without grammar. He thinking his English is very good, but my English is poor.
That's why my English is running in the world. But I can't speaking large, and because I speaking only in my business like this. So we now go to in Hindi. So when I study 7 only, but that time, first time I go to Lathi at night, because रात को हम कभी लाठी में रहते नहीं थे, मगर मेरा काका का घर लाठी में था, पहली बार मैं 6ठी में पढ़ता होगा, और रात को मेरा कजिन मेरे को पान खाने के लिए वो स्ट्रीट में ले गए। मेरी जिंदगी में मैं पहली बार ट्यूब लाइट देखा, जो वाइट आती है ना ट्यूब लाइट। तो मैंने सोचा कि ये 4 फुट बड़ी ट्यूब लाइट कैसे जलती है, कोई पूरा लाठी में एक ही थी। हमारे गांव में तो इलेक्ट्रिक थी नहीं, तो हमने तो देखा ही नहीं था। तो मैंने पहली बार देखा, तो मैंने दूर से देखा कि कोई बोलते हैं कि अगर लाइट को कोई टच करे तो करंट लगता है, तो ये ट्यूब लाइट तो पूरा जलती है, तो किसी को करंट नहीं लगता होगा, ऐसे सोचते थे। ये अभी आपको जो सुन रहे, ये गोविंद काका असल यही है, कोई ज्ञान नहीं था। मेरा कजिन जो लाठी में रहता था, उनका फादर बोले कि ये जो पंचायत का थंबा रहते और एक बल्ब लगाया हुआ रहता, वो बोले कि आज बल्ब उड़ गया है, मिस बंद हो गया, वो उड़ गया है, तो बल्ब बंद है। तो ये मेरा कजिन जो मेरे से 2 साल छोटा था, वो बल्ब ढूंढने को पूरा स्ट्रीट में निकले कि यहां से उड़ा हुआ है तो किधर पड़ा तो होगा ने, मैं जाके देख लूं। यही हमारी बुद्धि। आज वो जो मेरा कजिन है, उनको उनकी कंपनी भवानी जेम्स है, वो भी आज 1200 करोड़ का काम करते हैं। तो ये भी एक दुनिया है। तो किसी को अपने को कभी भी कि अपना नीचे जो हाथ करते हैं उसको कभी छोटा, कभी मन नहीं समझने का, क्या किधर किसी का हाल हो जाता है। मैं यहाँ अभी $1 बिलियन का कंपनी हो गया, काम करती है, तो क्या ये बुद्धि से हो गया? आप बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं कि एक संजोग को? आप लोग जितना बुद्धि से ज्यादा देते हैं, उसका हाथ खड़ा करेंगे, वो बुद्धि से हम विश्वास है, और जो संजोग को मानते हैं वो अभी ऊंचा हाथ करे। हो गया, थैंक यू। तो आप मेरी साथ है, क्योंकि अगर जो बुद्धि का आप महत्व समझो, तो मैं ही समझता हूं मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में एजुकेशन नहीं है, और मैं इतना मेमोरी मेरे पास नहीं है, तो मेरे को क्यों मिल गया? तो ये संजोग हो गया कि अगर डायमंड का बिजनेस नहीं निकला होता, डायमंड गॉड हमको नहीं मिला होता, तो आज भी मैं खेत में काम करता होता। ये संजोग था। अगर ये डायमंड का बिजनेस मेरे को आज 50 साल के बाद अगर मिलता, तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि तभी बिजनेस बढ़ रहा था। अभी बिजनेस जितनी साइज थी इतनी हो गई, तो नया आवे तो कैसे उसको बड़ा करे? किसी को निकाल के वो आ सकता है, उसमें एक्स्ट्रा बुद्धि चाहिए जो मेरी पास नहीं थी। तो ये बात है संजोग का। तो मैं पूरा मेरा जो सिद्धांत है, मैं पहला हमारा पर्सनल बोल दूं कि मैं डोंगरे जी महाराज के बहुत प्रभाव में हूं। डोंगरे जी महाराज मिस एक भागवत कथाकार थे, जो भागवत की कथा करते, वो तो चले गए धाम में ऊपर, उनको भी 25 साल हो गया, वो मेरे को नहीं पहचानता था, मगर वो जो प्रवचन देते थे, इसमें से मेरे को सब कुछ मिले हैं। वो प्रवचन में वो बोलते थे, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूर है, पाप करने की जरूरत नहीं है। ये उनका सेंटेंस था, ये मेरे जीवन में उतर गया। तो कभी भी झूठ बोलने की बात कंपनी में आज तक आई नहीं, ऊपर से नहीं आई, तो मेरा जनरेशन में भी नहीं है, कोई वर्कर में भी नहीं है, कोई
एंड ऑफ द हमारा सप्लायर में नहीं और बायर में नहीं। ऐसा बायर या टिक भी नहीं सकता और ऐसा सप्लायर भी टिक नहीं सकता कि जो चीटिंग करते हैं। तो अभी एकदम कंपनी इजी नॉर्मली चलती है, क्यों कि सब इजीनेस है। तो ऐसे करके मैं बोलता हूं आप सब लोग को भी कि मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं यही मानता हूं कि कर्तु, अकर्तु और अन्यथा कर्तु ईश्वर है। ईश्वर का आप कोई भी रूप दे दो, खुदा दे दो, कोई भी धर्म का है, मगर कोई अदृश्य शक्ति है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। योजना उनकी रहती है। तो मेरे को उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि सब योजना यही वहां से बनाता है। हमको क्या बनाने का है, ऊपर बनाने का, छोटा बनाने का, क्या बनाने का, ये सब उनकी योजना है। हम समझे कि अगर मैं ये काम नहीं किया होता तो मैं थोड़ा इतना ऊपर जाता। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बाद में मैं क्वेश्चन मांगूंगा आपसे, क्योंकि हम प्रवचन करने को मैं नहीं आया, हम बातचीत करने को आए हैं। हम सब लोग बात करेंगे, क्योंकि आप, मैं अकेला वन वे नहीं आया कि आपको कुछ देने के लिए आया, ऐसा कुछ मेरे पास है भी नहीं। मगर हम बातचीत करके हम भी कुछ यहां से लेके जाएंगे और बातचीत में अदल बदल होगा। अब्दुल कलाम का बायोग्राफी आपने सबने पढ़ा होगा। तो जिसने अब्दुल कलाम जी का जिसने भी बायोग्राफी पढ़ा है वो सब ऊंचा हाथ कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जो लोग ने नहीं पढ़ा है वो तुरंत ही एक वीक में पढ़ लेने का, क्योंकि अगर हमको मूल्यवान बनने का है, अच्छा बनने का है, तो अच्छा आदमी का बायोग्राफी तो पढ़ना ही पड़ेगा कि ये लोग कैसे अच्छे हुए। मेरा जीवन की शुरुआत डोंगरेज महाराज के बाद में हुई, तो मैंने गांधी जी की बायोग्राफी सत्य का प्रयोगो पढ़ा 40 साल पहले। वहां से मेरे को पूरा दरवाजा खुल गया कि मेरे को कैसे जीने का है और मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या कैसा शक्ति है और मैं क्या करता हूं। तो आप सब लोग ने गांधी जी को तो पढ़ा ही होगा, मगर उसमें मैं पूछता नहीं हूं। मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अब्दुल कलाम से पहले गांधी जी को पढ़ ले, सत्य का प्रयोग हो, बाद में अब्दुल कलाम जी को पढ़े। अब्दुल कलाम जी ने उनकी जो आत्मकथा में लिखा है कि साउथ में वो पढ़े, कॉलेज खत्म हुई, बाद में इंटरव्यू देने के लिए वो नॉर्थ इंडिया में पहली बार आए। दिल्ली में इंटरव्यू दिया, दूसरा इंटरव्यू देहरादून में था। और ये जो दिल्ली में इंटरव्यू दिया वो संस्था का मैं नाम भूल गया हूं, मगर जिसमें बाद में उसने काम किया। और देहरादून में जो इंटरव्यू था वो लश्कर में जो पायलट होते हैं उनका इंटरव्यू था। तो उसमें वो नापास हो गया, उनका 9th नंबर आया। 8 पायलट को लिया पायलट के लिए और उनका नंबर नहीं लगा। वो एकदम नाराज हो गए और एकदम डिप्रेशन में आ गए। उनका एक फ्रेंड था, वो उनको लेके गया ऋषिकेश। वहां सुबह में 5:30-6 बजे एक स्वामी जी मिलते हैं। वो बोला कि ये लड़का क्यों बहुत नाराज दिख रहे हैं। तो बोला कि उनका नंबर नहीं लगा, उनको जाने था, उड़ने का बहुत इच्छा थी, तो उसको पायलट बनने का था लश्कर में, मगर वो बन नहीं पाया, तो बहुत नाराज हो गए हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने एक पेज लिखा हुआ कि स्वामी जी ने क्या बोला। इस पेज में लिखा है कि स्वामी जी ने बोला कि ये जगत का नियंता तू है, ऊपर वाले को तेरे को क्या बनाने का है तेरे को मालूम है कि क्यों तेरे को पायलट नहीं बनाने रोक लिया, ये तेरे को कुछ मालूम है। तो तू कौन चिंता करने वाला और तू हरक शौक करने वाला कौन। जो हो रहा है वो सही हो रहा है और तू बिल्कुल ऐसे करके पूरा एक पेज लिखा हुआ है। आप हम लोग इतना पढ़ ले तो हमारी जिंदगी में कभी हमको स्ट्रेस आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पेज याद आ जाएगा तो हम स्ट्रेस में से बाहर निकल जाएंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो कोई करने वाला है। तो इनके नीचे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि अगर
मैं वहां पायलट में मेरे को एंट्री मिल गया होता तो मैं यहां से तीसरा स्थान पर ये होता। कोई नाम लिखा है, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं रहता है कि वहां बन के कहाँ कहाँ वो लश्कर में उसका बढ़ती मिलता है और किन की पोस्ट मिलती है। मगर उसने बोला कि मैं ये होता, मगर आज मैं मिसाइल मैन नहीं होता। तो कुदरत ने उनको मिसाइल मैन बनाने का था तो उसको पायलट में कैसे एंट्री देवे, ये बात है। तो बाद में तभी वो बायोग्राफी लिखी तभी वो राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उसने राष्ट्रपति का नहीं लिखा, खाली वो मिसाइल मैन थे। तो मैं यही बोलता हूं कि भगवान ने कौन सी योजना ऊपर वाला ने बनाई किसी को कुछ मालूम नहीं है। अपने बहुत हमको पर्दे में है हम लोग, हमको 1 मिनट के बाद क्या होने वाला किसी को कुछ भी पता नहीं है। और हम बात करते हैं पूरा वर्ल्ड चलाने की। तो मैंने अभी बोला ऐसा है कि भाई तो अभी ये पढ़ने का क्या जरूरत है, आपको बोलने का क्या जरूरत है, ये बीजू साहब का क्या काम है, हम क्या करें, या क्यों आवे, कुछ कहे नहीं, अपने से कुछ चलता नहीं, ऐसा नहीं। ददामि बुद्धि योगम तम, गीता में भगवान ने बोला है कि बुद्धिदाता मैं हूं। तो विश्वास यही रखने का है कि अगर उनको काम करने का है, मेरी पास अगर कराने का है, तो उसने योजना बनाया है। तो मेरे को बोला है कि IIM में भाई आप जाओ क्लास करके आओ, तो जाने का, बस जाने का ही, वहां से कुछ भगवान की योजना है। और मेरे को बोला कि जो आप सब लोग आए हुए हैं, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत विचारक है, तो उनकी पास जाके तू भी कुछ लेके आ। तो मेरे को भी सूरत से मैं वहां जाके ऐसा बोलूं, मेरे को क्या काम है, वो लोग को तो अभी कुछ मालूम है ही नहीं, मैं तो बड़ा इतना शेठ बन गया, इतना एक्सपोर्ट होता है, इतना हमारे पास कारोबार चलता है, क्या मैं जाऊं। तो मैं बुद्धू हूं, मैं कुछ नहीं पाऊंगा। तो भगवान, मैं बहुत छोटा था, 4वीं 5वीं पे था, मेरा फादर अनपढ़ थे, मगर एक वो हर साल एक तारीख के लिए किसी के पास लिखवावे कि आज कपास कितना हुआ, शिंग कितना हुआ, खेत में उत्पादन। एक जेब में एक डायरी रखता था, डायरी में पीछे से लिखा था मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। बस आज मैं ये सिद्धांत पर खुद हूं कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ये पूरा शास्त्र गिनो, पृथ्वी गणो, संसार गणो, अपना जीवन गणो, बस उनके खाली यही एक सेंटेंस में है, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। हमको कर्म करने का, बाकी ईश्वर की कृपा होगी तो ही उनका फल वो चाहे वो दे। हमारा बात है कि हमको कर्म करने का। एनी क्वेश्चन? प्लीज। सर नॉर्मली क्या होता है कि कॉम्पेंसेशन पैकेज जब देते हैं, हम इंसेंटिव जब देते हैं, तो एक प्रॉफिट का परसेंटेज देते हैं। आप बहुत जनरस हो, आपने मतलब बहुत कार्स बांटे, आपने बहुत फ्लैट्स बांटे, तो अगर किसी एंटरप्रेन्योर को अगर उनको कुछ इंसेंटिव डिजाइन करना है अपने कंपनी के लिए, तो कितना परसेंटेज कुछ करना चाहिए, कि कुछ मतलब दिल से करना चाहिए, कि कुछ साइंस और जैसे हम कहते हैं कि किताब का कुछ इक्वेशन लेके फॉर्मूला से करना चाहिए, कि और ऐसे करने के बाद काका मुझे दूसरा ये पूछना था कि अगले साल क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, क्या स्काई लिमिट है, कि आप कैसे उसको हैंडल करोगे? धन्यवाद भाई साहब ने ताली बजाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम कुछ भी काम करें, कुछ भी काम करें, 10% फॉर अदर, फॉर सोशल, 10%। हमारी पास बुद्धि है, हम प्रोफेसर है, टीचर है, कुछ भी है, मगर हम 90% काम करेंगे, मगर 10% हम समय, हमारी विद्या, हमारा कुछ भी, हम 10% किसी के लिए फ्री में मिस एक्स्ट्रा काम करेंगे। बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो 10% दूसरे के लिए उसमें से रखने का। भाई साहब बोला कि कैसे करना चाहिए, तो ये तो स्पेशली प्राइवेट है, ये बोलना नहीं चाहिए जाहिर में, मगर जो क्वेश्चन निकला है,
तो डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि आप कुछ भी काम करो मगर 10% दूसरे के लिए, भगवान के लिए रखो। तो हमने जब कंपनी शुरू की 1970 में, दैट टाइम वी आर ओनली 3 पार्टनर्स, नो एनी वर्कर। जब स्टार्ट किया तब धीरे धीरे बाद में शुरू हुई, तब भी हमने भगवान के लिए 10% का भाग रख लिया था। तो बाद में क्या होता है, मोटा फायदा क्या होता है इसमें, रमेश ओझा भागवत कथाकार, आप नाम सुना होगा आपने। तो हम स्विट्जरलैंड उनकी कथा में गए थे, तो वो बोला कि भाई 10% अपने को भगवान के लिए रखने, मीन्स दूसरे के लिए, कि जहां स्वार्थ नहीं है वहां बांटने का। तो फिर उसने ऐसा किया कि जो भाई आप 10% देने में तो कुछ हमको 10% में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आता है, लाख रुपया हम कमाया तो 10,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 लाख कमाया, लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। मगर करोड़ कमाने लगा तो चला 10 लाख ज्यादा लगता है, और 100 करोड़ अगर कमा दिया तो 10 करोड़ पर बहुत ज्यादा लगता है कि इतना 10 करोड़ दे देने का। फिर उसने जो बात बताई वो हमारे बहुत काम की है। उसने बोला तब ये जीव को, अपने को, अपनी ईगो को समझाओ, भिखारी तू क्या देगा 10%, भगवान तेरे को 90% देते हैं। ये 90% अपने को, जो सचमुच हम सब खुद को पूछे हैं, हम यहां तक पहुंचे हमारी जिंदगी में सबके लिए खुद, जैसे भी जहां भी है, तो हमारी होशियारी से हम पहुंचे हैं, तो भगवान ने दिया है। तो 90% उसने दिया, हमारा कुछ नहीं है, ये सोचकर अगर दिया तो बहुत खुशी से दे सकते हैं, बहुत खुशी से। उसका मैं एक एग्जाम्पल दूं कि बात वर्तन में आनी चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी अच्छा अच्छा बोलो, दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया तो आपका वर्तन में क्या है, भगवान तब मानेंगे कि आपका वर्तन में क्या है। असल में आप 10% काम भगवान के लिए करते हैं, दूसरे के लिए किया भगवान का हो गया, तो दूसरे के लिए करते हैं। तो अपने को जब भी 2008 में रिसेशन आया, और 2008 में पूरा डायमंड दुनिया में सब लोग ने वर्कर को निकाला, पूरा दुनिया, ऐसा नहीं इंडिया में निकाला, बेल्जियम होवे, इजराइल होवे, चाइना होवे, पूरा दुनिया में से सबको ऐसा लगा कि डायमंड का अभी $100 का $70 हो गया, अभी बिजनेस चलने वाला नहीं है, इतना डर गए। भगवान ने हमको बुद्धि दिया कि कंपनी किसका है, भगवान का है। तूने शुरू से नाम रखा, क्योंकि डोंगरे जी महाराज ने बोला था कि कोई भी काम करो तो भगवान को साथ में रखो। तो हमने भगवान को साथ में रखने के लिए राम और कृष्ण का नाम का कंपनी किया, क्योंकि मेरे को 2 ही भगवान पसंद थे, किसको छोड़े, तो राम कृष्ण रखा, और लक्ष्मी तो हमको चाहिए इसलिए श्री राम कृष्ण रखा। तो बाद में ये न्यू जनरेशन आया, उसने SRK कर दिया, इन वेरी फेमस श्री राम कृष्ण हो गया। तो 2008 में जब भी वो रिसेशन आया, मैंने सोचा कि ये योजना किसकी, कंपनी किसकी है, तू तो खाली उनका हैंडलिंग करा, तेरे को भगवान ने जवाबदारी सौंपा है। क्योंकि वो भी डोंगरेज महाराज बोलता था कि ये जगत है वो भगवान का नाटक है, ये ईश्वर ऊपर वाला का एक ड्रामा है। तो ये पूरा जगत को वो ड्रामा में सबको रोल देते हैं, तू पापा बन जा, तू बेटा बन जा, भाई तू पति बन जा, तू पत्नी बन जा, तू बॉस बन जा, तू मैनेजर बन जा, तू वर्कर बन जा, ये सबको रोल देते हैं। तो भगवान का दिया हुआ रोल अपने को सही तरह से उसको निभाने का है। अगर ड्रामा चलता है कॉलेज में, कॉलेजियन लोग ड्रामा करते हैं, सब बच्चे तो एक सरीखे ही होते हैं, मगर कॉलेज में एक ने किंग बनाया, एक ने चपरासी बनाया, वहां जाके वो चपरासी बोला है जो आपने भी तो हरखा से आओ ने यार, तो ड्रामा कोई दिवस ड्रामा जमेगा,
ड्रामा तो तब जमेगा कि चपरासी का काम चपरासी करेगा, ऐसा बोलेगा, राजा का काम राजा, शेठ बॉस का काम बॉस, तभी अपना ड्रामा को जमावट होगी। ऐसे भगवान का ड्रामा कब जमेगा कि भगवान ने दिया हुआ रोल हम लोग सही तरह से निभावे, कि हमने जो भी काम दिया, क्योंकि हम एवरी डे अपना ड्रामा मोर देन 50 to 100 टाइम चेंज होता है। फ्रेंड के पास जाता तो हमारा रोल चेंज हो जाता है, घर पे जावे तो चेंज होता है, ऑफिस में चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो गया, तो अपना रोल एकदम चेंज हो जाता है। तो ये रोल बराबर निभाने का दूसरा कोई काम नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई गोविंद, ये कंपनी किसका है? तो ये भगवान की है। तो तेरे को क्या करने का? मेरे को तो रोल निभाने का है। भगवान ने मैनेजमेंट का रोल मेरे को दिया है, जिम्मेदारी मेरे को दी है, मेरे को सही तरह से निभाने का है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने, मेरा सब भांजा और भतीजा, हमारी फैमिली कंपनी, सब पार्टनर वही थे, बुलाया तो वो सब बोला कि नहीं, अपने को अंकल अभी कंपनी बचाएंगे के अपने को वर्कर को बचाएंगे। मैंने उनको समझाया कि जो अपनी 5 कंपनी है उनका आप कितनी मूडी समझते हैं, कितनी बैलेंस में के कितनी अमाउंट का कंपनी समझते हैं, जितनी बुक्स ऊपर है इतना समझते हैं। बुक्स ऊपर अगर 1000 करोड़ है तो कंपनी 1000 करोड़ की नहीं है, कंपनी 5000 करोड़ की। आप सोचो क्यों? कि इंफ्रास्ट्रक्चर वही तो अपना कीमत है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अभी आप समझो कि पूरी कंपनी बचने वाली नहीं, तो जितना बचे, आग लगी है तो जितना भी हो सके इतना बचा लो, ऐसे आप कभी सोचेंगे? तो देखो, हमने, भगवान ने कंपनी को ये सब, हम कभी वर्कर नहीं बोलते हमारा स्टाफ को, कभी भी। हम सब जो 5-6 हजार आदमी हैं, सबको हम फैमिली मेंबर बोलते हैं। तो हमने उनको समझाया कि ये सब अपना फैमिली मेंबर है। तो एक कंपनी में से जब बाहर निकलेंगे तो हम सब लोग एक साथ में बाहर निकलेंगे, मगर जब तक एक कंपनी में हम रहेंगे तब तक ये पूरा स्टाफ कंपनी में रहेंगे। तो ये बड़ी स्टोरी है, इतना टाइम नहीं है। उसको इतना भी समझाया कि आप 50% को अगर ना बोल दो तो कितना पैसा बचेगा? 20%, क्योंकि अच्छा का तो सब आप रखेंगे और छोटा छोटा को निकालेंगे। तो ये सब उनके बाद में हमने पूरा रख लिया। भगवान की कोई योजना थी, हमारी कंपनी भगवान की थी, तो भगवान ने क्या योजना किया, हमको ये विचार देके कंपनी बच गई। पूरा विश्व में 3 कंपनी ऐसी थी कि एक भी वर्कर को जिसने निकाला नहीं, इसमें से हमारी एक कंपनी थी। तो हमारा जो वर्कर रहा 3 महीने में, ये जो 70 पैसा था उसका 75 हो गया, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ा? रॉ मटेरियल का 45 to 50 पैसा हो गया। रॉ मटेरियल 50 पैसे में लो, फिनिश गुड 75 पैसे में बेच डालो। 100 का 150 मैंने हमारी जिंदगी में देखा नहीं कैसे होता है। तो सब लोग को होता था, पूरा मार्केट में सबको होने लगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस डाउन गया। जैसे अभी क्रूड का प्राइस डाउन गया और मोदी जी को इजी हो गया ना, ऐसे। तो ये जो प्राइस हमारा जो नीचे गया रॉ मटेरियल का प्राइस, किसी के पास प्रोडक्ट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने तोड़ डाला था। सबको होता था 100 का 150, मगर जिसके पास प्रोडक्शन था वो ही कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि भाई भगवान ने क्या किया, 4 महीने के बाद हमारा प्रोडक्शन 110% था। सब लोग का, किसी के पास 20% था, किसी के पास 30% था। लाभ किसको मिला? हमने। किसको दिलाया? भगवान ने। क्यों? कंपनी भगवान ने थी, विचार उसने दिया। और हमारी कंपनी का 2008 बिगिनिंग में 20 नंबर पर कंपनी पूरा इंडिया में थी, और जून 2009 में 3 नंबर पर आ गई। दैट इज द भगवान। ये हमारी कोई बुद्धि का काम नहीं है, ये विचार का काम है।
कर भला तो हो भला, यही बात है। तो अभी आपको पूरा सेटिस्फेक्शन। धन्यवाद। हर दिन में दिनचर्या में ईर्ष्या और द्वेष को कैसे, बिकॉज ये तो बड़ा कॉमन है, कलयुग का बड़ा प्रभाव है, बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों चीजों को किस तरह से आप? ये भाई का प्रश्न है कि जैसे कोई ईर्ष्या आ जाए, सबको खुद का काम करने का है, किसी को आगे बढ़ने के लिए बाहर जाने का है, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक चीज से सब चीज आ जाती है, बाहर कहां भी नहीं जाना पड़ता है। क्या कुछ भी, आप कुछ भी है, कहां भी है, खाली 10% देने का वादा करो, ये सब प्रॉब्लम खत्म। क्यों? कि आपका मन बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो आप, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप ज्यादा पैसा देंगे। वो मांगे कि मेरे को 20,000 चाहिए, आप मां समझेंगे कि वो 15,000 का आदमी है, तो आप उनको बोलेंगे कि भाई माफ करना, आप किसी दूसरी जगह ढूंढ लेने का, प्यार से बोल देने का। मगर आपको मालूम है कि 25,000 का आदमी है और 20,000 मांग रहा है, तो आप उनको 22,000 सामने से देंगे। क्यों? कि आपका मन बड़ा हो गया है। तो बांटने से मन बड़ा होता है। तो ये तो स्वभाव बन जाता है। ये स्वभाव अत्र तत्र सर्वत्र रहता है। हमारे क्या हुआ कि कैसे ईर्ष्या वृत्ति नहीं आई? हमारे अगर कोई इंटरव्यू में आवे, हम लोग लेवे, तो हम पहले वो हमारे को बोले कि भाई हमारे को सैलरी कितना मिलेगा, हम बोलते हैं 0। वो बोले हमारा टाइम क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं कि 365 डेज हूँ 724 बोला ना, क्या बोलता है? हाँ। तो ये आपका टाइम है। क्यों? आप यहां नौकर बन के नहीं आ रहे हैं कंपनी में। नौकर का मीनिंग होता है कुछ नहीं करना, उसको नौकर बोलते हैं। नौकरी, जो लोग नौकरी करते हैं वो कोई कुछ नहीं करते, नौकरी करते कुछ नहीं करते। अगर वो फैमिली मेंबर बन जाते हैं, कोई भी कंपनी में आप गए और समझने लगे कंपनी मेरी है, कंपनी का दाज हो गया, तो आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकते, और कंपनी की प्रगति को कोई रोक नहीं सकते। मगर जब कंपनी में हमने ऐसा जब भी सोचा कि इसमें मेरा क्या और मेरे को क्या, बात खत्म। तो कंपनी में सब अपना, कंपनी का अपना समझना चाहिए। तो हमारे वहां क्या होता है कि हम उनको बोलते हैं आप फैमिली मेंबर है। अगर कंपनी सुख में है तो आपको सुख मिलेगा, कंपनी मुश्किल में है आपको मुश्किल ही आएगी। तो आप फैमिली मेंबर है। आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास है कि ये लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, तो ही आपको ये कंपनी में आने का। अगर हमारी कंपनी में आके 45 साल से, आज नहीं, एक भी बार कोई पगार के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते कि भाई हम बोलने से वो मान नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा वर्ताव होना चाहिए कि उनकी लायकात अभी 20,000 की है तो उनको 22 दो, उनकी लायकात 40 की है तो 42 दो। मगर हम सोचे कि वो बेचारा क्यों हम 42 देवे, वो तो 25 में रहने को तैयार है, तो जाएगा, जरूर जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो जाएगा। अगर 42 में चले गए तो उनका भी नुकसान होगा, जो रखेगा उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि हम जो देते हैं उनको पूरा देते हैं। हमको कमाने का है। कोई भी कंपनी वालों को मैं पूछता हूं, कोई भी कंपनी वाले को, हमको जो कमाने का है, कंपनी का फ्यूचर बनाने का है, ये सैलरी में से बनाने का है। सैलरी कम करके आदमी की और कमाने का है। कमाने का है कैसे कंपनी जो होती है उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी में कैसे लावे, परचेस में सिस्टम कैसे लावे, सेल में सिस्टम कैसे लावे,
सेल में अगर आप महंगा बिकेंगे कंपनी नहीं चलेगी, रॉ मटेरियल अगर आप सस्ता लेंगे मार्केट से कंपनी नहीं चलेगी, और अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसमें चलेगा ये शब्द आएगा तो कंपनी नहीं चलेगा। तो कंपनी में जो कमाने का है ये कंपटीशन में, पूरा मार्केट में कंपटीशन में अपना काम जो अपना कॉम्पिटेटेड है उनसे अच्छा होना चाहिए। दूसरी कोई क्यों बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। डायमंड वाला टेक्सटाइल वालों को क्यों देखे, टेक्सटाइल वाला है ये वो स्टील वाले को क्यों देखे, क्योंकि उनका कंपटीशन नहीं है। जहां हमारा कंपटीशन है उनके अपना उसको पीछे नहीं रखने का, ऐसा हमको आगे निकलने का है। तो हम आगे कैसे निकलेंगे? आगे निकलने का तरीका होता है हमारा में ट्रस्ट होना चाहिए, खुमारी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और हमारी साथ वाला सब उत्साहित होता एवरीडे दे आर, हम घोड़ा जैसा दौड़ता है ना अपने, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ये लोग जैसा जब भी ऐसे सोचेंगे जाने दो ने यार सेठ मगजमारी करते हैं, तो अपना कभी अच्छा वो नहीं करेंगे और कंपनी का अच्छा नहीं होगा। कंपटीशन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कोई लोग क्या करते हैं, हमारे एक कंपनी थी उसने खाद्य पदार्थ का कंपनी बनाया, दूसरा लोग ने क्या किया कि ये कंपनी में उनका सेल्समैन को रख दिया, और कैसे रखा तो वो बोला कि वहां मेरे को नहीं रहे, कंपनी बहुत खराब, मेरे को इतना ही पगार देती है, मैं एक काम का हूं। तो ये कंपनी ऐसा सोचा कि ये कंपनी का इतना अच्छा आदमी हमको तैयार मिल जाता है तो हमारा भी मार्केटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने उनको रख लिया, मगर असल में क्या व्यू था कि जो कंपनी ने आदमी को भेजा था उसने वहां से चालू पगार से भेजा था कि तू 6 महीना वहां जा, उनका मार्केटिंग ऐसा करके उन्हीं कंपनी का डाउन हो जाए। तो 6 महीने में ये मालूम 6 महीने के बाद पड़ा। तो मैं क्या बोलता हूं, उसमें नहीं होता है जो कंपनी ने भेजा उसका भी अच्छा सडनली लगता है, तात्कालिक लगता है। आज हमको लगता है कि बहुत हो गया। देखो पाया में क्या होता है, मैं एक छोटा मेरी ही बात आएगी तो आपको अपनापन क्या लगता है, आत्मश्लाघा आप वखाण के ना हमारे गुजराती में आत्मश्लाघा लगेगी। मगर मैं क्या करूं, मेरी पास दूसरा तो कोई ज्ञान है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है, तो मैं अपनी बात बताता हूं। क्षमा याचना। जब हमने 1970 में फैक्ट्री शुरू की तो लेबर से दूसरी पार्टी का माल हम लाए। उसने लिखा था कि हमारे को यील्ड चाहिए 28%, એટલે डायमंड में बाजू राउंड करने में घिसने में बात निकल जाता है। हमारे को आया 34%, क्योंकि हम तीनों ही थे, एक हमारा पार्टनर का भाई था, तो इसमें से कोई नुकसान नहीं आया, तो ईल आया 34%। जिसने मेरे को माल दिलाया था वो बोला कि हमारे को तो कभी 28% से आगे आया ही नहीं, और अभी जो तू 34% उनको देंगे तो हमारा सबका बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी मैं क्या करूं? तो मैंने उनको बोला कि मैं तो छोटा बड़ा डायमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी पाप करके पैसा बनाने नहीं मांगता हूं। तो तेरा को नहीं बिगड़े तो तू छोटा बड़ा डायमंड कर दे। तो उसने वो मेरा लॉट में कर दिया, जिसने मेरे को माल दिलवाया था उसने, और 26% ले जाने का था, 26 कर दिया। मैं लॉट लेके गया, उसने बराबर लगा, मेरे को दूसरा माल भी दिया। मैंने सोचा कि उनको 26% में अगर पैसा मिलता है तो मेरे को 34% में नहीं मिलेगा, तो मैं खुद का काम करूं। मगर खुद का काम करूं, मालूम तो था नहीं कि रॉ मटेरियल कहाँ मिले, डायमंड कहाँ, फिनिश गुड बेचने का। तो मैं मार्केट में ऐसे गया कि ये डायमंड की ऑफिस है, मेरा बड़ा भाई ने बताया था। वहां जाके मैंने बोला कि मेरे को रॉ मटेरियल लेने का मिलता है, तो उसने बोला यहाँ नहीं मिलता, मैं साथ में आऊँ, मेरे को ब्रोकरिंग दे देना। वो साथ में आया, मैं गया 4 ऑफिस में गया, कौन सा भाव मालूम तो था नहीं मेरे को कि डायमंड का भाव क्या रॉ मटेरियल का लगता है।
तो 4 में से एक आदमी ने बिल्कुल भाव कमती नहीं किया, 91 रुपीज का भाव किया, कमती नहीं किया। मैंने उनको बोला मेरे को 5 कैरेट दो, 5 कैरेट એટલે 1 ग्राम। ये बोला 10 कैरेट से कम नहीं मिलेगा। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, 910 रुपया चाहिए, 10 रुपया ब्रोकरिंग, 920 रुपया चाहिए, मेरे पास 500 रुपया है। तो बोला ये घर के आके ब्रोकर तेरे साथ आएगा, घर से ले जाएगा। तभी मेरा मैरिज भी नहीं हुआ था, ये तो मैरिज हुआ 71 में, ये बात है 70 की। तो मैं मेरा पार्टनर के घर पे रहता था, तो ब्रोकर तो साथ में आया, 10 कैरेट दिया। तो मैंने मेरा पार्टनर जो विरजी भाई, उनको बोला कि विरजी भाई ये उनको 420 रुपया देने का है। तो बोला कि यहाँ क्या फदो है, फदो मीन्स काठियावाड़ी भाषा में पैसा ने फदो के फदिया, तो कि यहाँ क्या फदो है। पर मैं अभी तो मैंने बोला माल तो मैं लेके आया। तो उसने उनकी वाइफ से 5 से 200 रुपया वापिस लिया, पड़ोसी से 200 रुपया लिया, 20 रुपया उसने जेब में से दिया। ये पहली हमारी डायमंड की खरीदी। और जब हमने शुरू की तो जिसके पास हमने रॉ मटेरियल लिया उसको हमने माल बताया, तो उसने हमने 4 रुपया लेबर में फिर ले लिया। वो हमको 3 रुपया 25 पैसे देते थे, 3.25 रुपया, उसने 4 रुपये में ले लिया। कभी भी हमने चोरी नहीं की, छोटा बड़ा डायमंड नहीं किया, और आज तक अनजान में भी हमारा व्यापार चल गया। क्यों चल गया? कि हमारे को झूठ करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए चल गया। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये सत्य की ताकत के लिए आप भी शॉर्टकट बहुत आते हैं, मगर कभी भी शॉर्टकट नहीं पकड़ने का। ये लंबा रास्ता है सत्य का, मगर एकदम सही है। मैं क्वेश्चन भाई पूछते हैं, पर मगर मेरा दिमाग में जो एक बात आया तो मैं बोल दूं कि मूल्य और कीमत में फर्क है। कीमत और मूल्य में फर्क है। वैल्यू एंड प्राइस। वैल्यू बहुत बड़ी है और प्राइस हम लोग देखते हैं प्राइस कैसे। किंग एडवर्ड 5, आप सब लोग को तो मालूम है किंग एडवर्ड 5, कितना लोग उनको पहचानते हैं? किंग एडवर्ड 5, 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। और अपना महात्मा गांधी जी को कितना पहचानता है? एवरीबडी। ये मूल्य है, वो कीमत है। क्यों? 1922 में, आज से 90 साल पहले, एक किंग एडवर्ड 5 अपना ब्रिटिश का राजा था। उनकी पास ये पूरा पृथ्वी 1/3 से ज्यादा उनका वो मालिक था। पूरा पृथ्वी का 1/3 से ज्यादा पृथ्वी का मालिक था और 1/3 से ज्यादा पब्लिक का वो राजा था। इतना बड़ा आदमी, और आप उनको 90 साल 100 साल नहीं हुए पहचानते नहीं है। इतना बड़ा कीमती था ना वो, कीमती, कितना बड़ा कीमती। कीमत तो उनके पास थी। 1/3 पृथ्वी का राजा। हमारे पास एक बंगला आ जाए, वो भी कॉर्नर का आ जाए, तो हम बोलते हैं हमारा को कॉर्नर का बंगला है। इतना हमको तो 1/3 पृथ्वी का राजा, उनको हम 100 साल नहीं हुए फिर भी पहचानते नहीं है। प्राइस की कोई कीमत नहीं, आप समझ गए ना। और गांधी जी के पास एक पोतड़ी थी, कुछ नहीं था, उनके पास मूल्य था। इसलिए हम लोग तो पहचानते हैं। पूरा वर्ल्ड में 150 से ज्यादा कंट्री में गांधी जी का स्टेच्यू बिठाया है। क्यों? मूल्य के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, मूल्य के। आज सबके पास गांधी जी सबके जेब में घुस गए 125 करोड़। क्यों? मूल्य। तो ये मूल्य की बात है कि हम कीमत को अगर पकड़े तो वी आर नथिंग। हम अगर मूल्य को पकड़े, एवरीथिंग वी हैव। ये बड़ी बात अपने को ध्यान में रखने की है। प्लीज। तो ये डायमंड कटिंग का जो मार्केट है, ये सूरत में क्यों डेवलप हुआ, और सेकेंडली सूरत से बाहर क्यों नहीं गया? धन्यवाद। ये सूरत में कैसे हुआ? तो पहले कोई भी बिजनेस होवे, कोई भी, पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां छोटा से शुरू होवे, तो वहां से सब बड़ा 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 होता जाए। भाई अमेरिका में
सिलिकॉन हूं, सिलिकॉन वैली। तो सॉफ्टवेयर નું वहां क्यों बड़ा हो गया है? अमेरिका में पहला एक कंपनी अच्छा आया, दूसरा उनकी 5 आया, और जैसे कोई भी बिजनेस एक वेरी स्ट्रांग करके एक थोड़ा खड़ा रहता है तो सब लोग बढ़ जाए। जैसे अपनी देशी भाषा में हमारे लिए समझे तो अपनी स्ट्रीट में थोड़ा कचरा डाल दो, यहाँ सुबह तक में वो कचरा भी एकदम बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे जहां भी एक बिजनेस होता है, पूना में जैसे सॉफ्टवेयर का हो गया, हैदराबाद में हो गया, बेंगलोर में हो गया, अहमदाबाद में बहुत अपनी इच्छा थी, पर हम इतना नहीं बढ़ा सके क्योंकि वहां वो डेवलप। ऐसे सूरत में पहले रंगून से जो पटेल लोग थे, ये रंगून में थे और वहां थोड़ा डायमंड का काम करते थे। वहां से सबको निकाला जब भी, तो ये नवसारी और सूरत का था। तो ये लोग 1940-45 में सूरत आया और नवसारी में थोड़ा काम शुरू किया, थोड़ा सूरत में शुरू किया। तो ये लोग काम करते थे, तो डायमंड तभी तो खाली किंग के अलावा कोई डायमंड का यूज नहीं करता था। तो वहां डायमंड का शुरू हुआ और बंबई में भी हुआ, मगर बंबई महंगा बहुत था तो वहां डेवलप नहीं हुआ। और 2 जगह में मैन्युफैक्चरिंग चलता है तो सूरत में ज्यादा करके लोग को कंफर्ट रहता है, इसलिए सूरत आ गए। तो वे आके उसने थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, बाद में एकदम बिजनेस बढ़ा। क्योंकि मैं 1964 में आया तो इंडिया का एक्सपोर्ट डायमंड का ओनली 6 करोड़ का, ओनली 6 करोड़ का एक्सपोर्ट था 1964 में। आज 2 लाख करोड़ का है। तो ये बाद में जो बढ़ावा हुआ तो यहाँ जो था। और दूसरी बात है कि डायमंड कटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो खेत में लोग काम करते हैं, जो एकदम क्या बोलते हैं, मेहनत करते, मेहनतू है, उससे ही वो डायमंड का काम थोड़ा गहरा, इसलिए उससे चलता है। तो पूरा सूरत में जो बढ़ावा हुआ, पूरा सौराष्ट्र का लोग आया, उत्तर गुजरात का आया, वहां का थोड़ा आजू बाजू गांव का आया। और 20 साल के बाद ये पहले इंटर स्टेट में से भी आने लगा। तो ऐसे वहां बढ़ावा हो गया। तो वहां जब इनकी ईल्ड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, उनके लिए सब चीज मिले, इसलिए वहां बढ़ावा हुआ। मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर निकालता हूँ, उसको चैरिटी करता हूँ यूजुअली आश्रम में, दूसरी जगह। तो क्या अगर मैं उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देता हूँ तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए जाएगा। सेकंड, जो भी अपन देते, मान लीजिए फ्लैट है या सोना है या चांदी या कार है, तो क्या वो परफॉर्मेंस के बेसिस में होगा कि एक कैटेगरी के लोगों के बेसिस में होगा, या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उसको अपन ने ज़्यादा महंगी चीज़ दी? भाई का जो क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल में समझे तो ऐसा है कि भाई अपने को 10% देने को नक्की किया, जैसे उसने किया है, तो जाके आश्रम में दे दिया। ऐसे करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? तो ये काम तो अपने स्वभाव से करना चाहिए, क्योंकि हम सक्सेस तभी होते हैं कि हमारे नेचर में क्या है, असल में क्या है हमारा स्वभाव में। दाखला तरीके मेरा स्वभाव भाई धार्मिक है, तो धार्मिक होने के नाते मेरा सब पैसा मंदिर में ही जाना चाहिए। पर मेरे को ज्यादा करके इस सोशल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमारा जो पैसा है ज्यादा करके सोशल में जाते हैं। कैसे सोशल में? तो 22 साल से एक रिलीफ सेंटर में चलाता हूँ। भगवान चलाते हैं, भगवान का पैसा से चलते हैं, हमारा पैसा से नहीं। मगर मैं वहाँ जाके 1 घंटे बैठता हूँ। तो वहाँ जाके एक सिस्टम है कि भाई वहाँ कोई भी लोग आवे, कोई भी आ सकता है, आके उसको फॉर्म भरने का 6, 7, 8 आदमी का एक सिस्टम है। तो वो बल्कि उसका घर पे अगर जाने का है तो वो वहाँ जाके वो तपास करेगा कि वो सही है कि नहीं। पड़ोसन को पूछेंगे दारू पीता है कि नहीं, कैसा है, पति पत्नी को झगड़ा होता है कि नहीं, असल में क्या है उनका, असल जरूर पड़े तो हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा करके अगर उनको मदद की जरूरत है तो हम उनको देते हैं। एक बात हो गई कि उसका तो बहुत रास्ता है, एजुकेशन में देते हैं। अभी 7000 से ज्यादा विद्यार्थी है जो हमारा रिलीफ सेंटर में से स्कॉलरशिप लेते हैं, क्योंकि एक बार उसने एंट्री किया तो जब तक वो पढ़ते हैं तहां तक उसको फुल नहीं देने का, मगर एक किसी को 5000 हर साल, किसी को 1000, किसी को 25000, जैसा उसका सिचुएशन, कैसा उनका स्थिति है, तपास करके देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 7000 से ज्यादा जो विद्यार्थी है, मेरी सिस्टम अलग है
कि कोई भी विद्यार्थी आवे फॉर्म भरा तो उसको मैं एक गीता जी देता हूं। भाई गीता जी दे के बोलता हूं कि अगर तेरे को स्कॉलरशिप की जरूरत है तो तू गीता जी का एक अध्याय पक्का कर ले। जो गीता जी का अध्याय पक्का कर ले तो मैं मानता हूं कि तेरे को जरूरत है। ये 50% हो जाता, नहीं कर वो पक्का करके नहीं आएंगे, चले जाएंगे, जा तो जाने दो। नहीं तो ये बात हमारा 50% अपने को तपास नहीं करना पड़ेगा। तो कोई मुस्लिम आया तो मुस्लिम को गीता नहीं देते हैं, उनको भाई उनका कुरान बुक लेके आओ। और हमने एक हमारा स्टाफ में मुस्लिम भी रखा है, वो कुरान 30-40 उनका वो पढ़ जाए तो उनको भी दे देने का। ख्रिस्ती है तो उनकी बुक लाने का, पारसी है उनकी लाने का। हम धर्म परिवर्तन करके उनको ऐसा नहीं कि गीता सही है, भाई उनका भी बुक सही होगा उनके हिसाब से। तो हम सबको मान सम्मान देते हैं। तो ये करके ये जो 7,000 से ज्यादा विद्यार्थी अभी स्कॉलरशिप लेके गए के लेता है, फायदा यही है। मैं एक एग्जाम्पल आपू कि एक बहन और माँ दीकरी दोनों आई, ये तो 10 साल पहले की बात है। दीकरी आके बोली कि भाई मेरे को 15,000 अंकल आज ही चाहिए, नहीं तो मेरे को एग्जाम में कॉलेज में नहीं बैठने देंगे, परसों मेरी एग्जाम है। तो मैंने बोला दीकरा गीता तेरे को अध्याय पक्का करना पड़ेगा। तो वो बोला कि गीता मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि परसों तो मेरे को एग्जाम है। मैंने बोला हमारा सिद्धांत में मैं चेंज नहीं करूंगा, ये तेरा प्रॉब्लम है हमारा नहीं है, मगर ये तेरे को करना पड़ेगा। ये रोने लगी, उनकी मम्मी रोने लगी। फिर बाद में बोली कि अंकल हम गरीब नहीं है, मेरे पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, मगर मेरा पप्पा 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मर गए और हमें अभी माँ दीकरी दोनों हैं। मेरा भाई छोटा है, कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। जितना पैसा पप्पा था वो सब के अभी हम किसी के पास पैसा लेने का जावे तो वो हमको विश्वास नहीं कि समाज हमको क्या बोलेंगे, हमको क्या माँ दीकरी को क्या हमारी सेफ्टी है कि नहीं। इसलिए मैं सही जगह पर आई हूँ। मैंने बोला तेरा विश्वास है, मेरा नमस्कार है, मगर तेरे को गीता का अध्याय पक्का करना पड़ेगा। गीता लेके गई, दूसरे दिन 3 अध्याय बोली वो। क्यों? उनको जरूरत थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आज तेरे को 15,000 का चेक चाहिए, अभी तेरे को 15 लाख का भी मिलेगा। तेरे को पढ़ने का है, अभी तू बोलती नहीं कि मेरा पप्पा ऑफ हो गया, ये तेरा तू मेरी पालक दीकरी, मैं तेरा पालक पिता हो गया, अभी तू मेरी दीकरी है। तो कुछ भी चाहिए, अभी किसी को कुछ नहीं बोलने का, बोल। तो कह नहीं 15,000 दो। 15,000 लेके गई, दूसरे दिन एग्जाम हो गई। 3 साल के बाद आई कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। गोल्ड मेडल मिलता है ना, तो अभी मेरे को रिलायंस में नौकरी चाहिए, तो मेरे को आप भलामण लेटर दे दो। मैंने दे दिया, हेमंत भाई मैं पहचानता तो फिर वो लेटर तीसरे दिन वापस दे दी कि मेरे को LNT में सर्विस मिल गई, मेरे को ये लेटर की जरूरत नहीं है। आज तक अभी मेरे को मिली नहीं, क्या हुआ, पर ये सेटिस्फेक्शन है। जो बात कभी ऐसा जो आ जाता है, मगर सिद्धांत में फर्क नहीं करते, नकर वो दया की बात थी। ये टाइम पर अपना सिद्धांत चल जाता कि बेचारी दीकरी क्या करे, अभी दे दो, और गीता अध्याय पक्का नहीं करे फिर भी 15,000 देने का दे दो। पर ये बात है कि उनका कल्याण हो गया। ये उनको जो आज गीता का 3 अध्याय पक्का रहा, ये उनके जिंदगी का असलियत फ्यूचर बन गया। तो ये जो बात है। पहले तो आपको शुभकामनाएं आपकी कामयाबी के लिए। मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ और हमने आपको पहली बार आपके कंपनी ने जो कार डिस्ट्रीब्यूट किया था टीवी चैनल में देखा था। आज हमारे देश की इतने दिन की आज़ादी हो गया, आज भी हमारे देश में गरीब है। अगर आप प्रधानमंत्री इस देश का बनते हैं तो क्या ये बदलाव आ पाएगा? धन्यवाद। देखो कि राजकारण तो मेरा जीव नहीं है, मेरे को कुछ मालूम नहीं इसमें, मगर साक्षात आज भगवान भी आ जाए ना, साक्षात भगवान, तो वो सडनली रात ही रात बदलाव नहीं कर सकते, उनको भी समय चाहिए। मगर जो प्रवास 60 साल से चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रवाह चल रहे हैं। और अभी भी जो प्रॉब्लम है, आप लोग तो कहाँ से आते मेरे को मालूम नहीं, मगर मैं गांव का आदमी हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। मेरा एक पैर ने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा और मैंने 7 साल तक ये छड्डी भी नहीं पहनी। स्कूल जाता तभी पहले दिन छड्डी पहनने का गांव में रिवाज था, मैं ही नहीं, कोई नहीं पहनता था।
तो ये जिंदगी मैंने आदिवासी जिंदगी जी है। हम लोग 22 साल से हर साल एक कैंप करने के लिए 100 डॉक्टर लेके आदिवासी एरिया में जाते हैं। तो ये 5 साल पहले हम डांगा हवे में गए थे, तो कैंप चलता था। हम दरवाजे पर 20-25 हमारा फ्रेंड सब खड़े थे, क्योंकि हमारी 4 बस होती है और 20-30-40 गाड़ियों लेके हम जाते हैं और वहां जाके 1000, 2000, 3000 पेशेंट देखते हैं। और अगर उसमें से जितने की जरूरत पड़े ऑपरेशन की कुछ भी, तो उसको उनका एरिया में सूरत का डॉक्टर जाके ऑपरेशन करते हैं, नगर वो को सूरत लाके उसका ऑपरेशन कराते हैं। ऐसी सब सिस्टम चलती है। तो मैं वहां खड़ा था, 3 लड़का आया, एमा एक लड़का था कि 4-5 साल का होगा, तो एकदम माथे में गुमड़ा था। तो जैसे वहां से पसार हुआ, मैंने उसको खड़ा रखा, है क्या नाम है तेरा? तो मेरा जो साथियों था उसने मोढ़ा बिगाड़ा कि ऐसा गंदा, गोविंद भाई का काम ही ऐसा है कि एक गंदा लड़का है उसको खड़ा रखते, पाछो पूछते हैं, जाने दो। मैंने उनको बोला, भाई गोविंदोश है, मैं भी उनकी जैसा जब था 5-6 साल, मेरे भी इतने गुमड़ा था, मेरा माथा में भी और जू था। ये मैं आपको बताने चाहता हूं कि ये गोविंदो है। ये अभी आपको गोविंद काका, गोविंद भाई लगता है, मगर ये लाइफ मेरी थी। तो मेरे को तो मेरा जैसा मिला, मैंने उनके ऊपर मेरा प्यार है, इसलिए मैंने उनको रोका है। तो बात यही है कि ये जो गरीबी हमने देखी है, तो उससे अभी बहुत अच्छा भारत है। भारत किसको अच्छा नहीं लगता है? ये भारत पीछे वाला नहीं देखा है उसको। क्यों? कि अभी हमने जब ये बोतल यहां पड़ी है, वो आपको सतयुग नहीं लगते? किसी ने वो कलयुग का क्या बोलते थे? कोई ने प्रश्न पूछा था कलयुग का, क्या बोला था आपने? कलयुग में ईर्ष्या और द्वेष बहुत बढ़ गया। ओके, ये अभी मैं बोलता हूं कि सृष्टि जब थी हुई, करोड़ों साल पहले अभी सृष्टि बनी, आज जितना समय अच्छा है इतना कभी नहीं था। राम राज्य में भी नहीं, कभी नहीं इतना अच्छा अभी समय है। आप बोले कैसे? तो मैं यही कहता हूं कि हम क्यों ऐसे नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है? क्योंकि हमारा मानस ऐसा नेगेटिव बना दिया है। किसने बनाया? तो मीडिया वाला ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पेपर। तो मीडिया वाला खराब नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया वाला बहुत अच्छी, वो हमारे से ही है, हमारा ही भाई है, हमारा ही काका है, हमारा फैमिली का है। तो क्यों बना दिया? भाई उनका बिजनेस है, हमारा दोष है। हमको अच्छा पढ़ने का ही नहीं है, हमको अच्छा सुनने का ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव नेगेटिव बन गया। 7-8 साल पहले वहां हमारा गुजरात समाचार में बड़ा हेडिंग आया, पीछे के पाने के कड़ोदरा रोड पे रुपया 1300 करोड़ की लूट। अंदर के पाने में इतना छोटा मैसेज था, बारडोली में एक एनआरआई ने 1.25 करोड़ रुपया का डोनेशन दिया। मैंने तंत्री, मेरा मित्र था, मैंने उनको पूछा, भाई साहब 1.25 करोड़ बड़ा है कि 1300 रुपया बड़ा है? 1300 रुपया का आपने हेडिंग बनाया और 1.25 करोड़ को अंदर इतना दब दिया। ये बोला हम अमाउंट नहीं देखते हैं, न्यूज कौन सा है। क्यों? कि हम अगर हेडिंग बनाते कि बारडोली में 1.25 करोड़ रुपया का डोनेशन एनआरआई ने दिया, तो पढ़ने वाला 50,000 मिलता, और ये 1300 रुपया की लूट पढ़ने वाला 1,50,000 मिलेगा। तो हमको तो कौन ज्यादा पढ़े उनको हम लेने। इसलिए हमारा मानस नेगेटिव वातावरण ने बना दिया है। मैं बारंबार जाहिर प्रवचन में बोलता हूं कि आप पेपर पढ़िए। मेरे वहां 10 पेपर एवरीडे आते हैं, पढ़ना ही चाहिए, मगर 5 मिनट से ज्यादा कभी भी मैं पेपर नहीं पढ़ता, खाली ऊपर नीचे देख लेता हूं, अपने को मालूम हो जाए कि कौन सा रास्ते में क्या पेपर कौन सी लाइन में चल रहा है, उसमें कौन सा स्पेशली रास्ता होता है, इतना मालूम हो जाए। और अगर टाइम है ज्यादा पढ़ने का है, अंदर का जो पूर्ति आता है वो पूरा पॉजिटिव होती है। कोई ने किसी को वो नहीं पढ़ने का है, ये पॉजिटिव है, पेपर नेगेटिव है।
तो नेगेटिव अपने को उनका मालिक को तंत्री को दोष नहीं देने का है, अपने का दोष है कि अपने को अच्छा पढ़ने का नहीं है। तो अभी दुनिया क्यों अच्छी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी ऐसा सोचा, अभी समय था कि अभी ये बहन दीकरी सूर्यास्त के बाद में बाहर, घर की बाहर रहती थी। कौन सा समय था आप बताओ? राम राज्य में था, महाभारत में था, 100 साल पहले था, अपने ऊपर अंग्रेजों का राज्य था तभी था, अपने ऊपर मुस्लिम का राज्य 700 साल पहला तभी था, कभी था कि सूर्यास्त के बाद में, सूर्य अस्त हो जाए उनके बाद में कोई भी स्त्री घर की बाहर रह सके, ऐसा समय कभी था? कोई समय आया ही नहीं। ये अभी तो सतयुग है, अच्छा से अच्छा समय है, जीने जैसा है। मैं 40 साल पहले फॉरेन जाता था, कस्टम में कितना प्रॉब्लम, ये दिन देखा तो अभी बहुत अच्छा लगेगा कि कस्टम बहुत अच्छा है, अपना इमिग्रेशन बहुत अच्छा है, मगर वो दिन जिसने देखा नहीं और यहाँ 3 मिनट इमिग्रेशन में ठहरना पड़े, ये साला इंडिया का, भारत का तो ऐसा ही रहता है भाई। हमें 1.5 घंटा खड़ा रहता था भाई, अभी सुधर गया, 3 मिनट हो गई 1.5 घंटा की। ये सुनो, तो अभी सिस्टम बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अच्छी है। तो हम सोचते हैं तो गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है? गरीबी बढ़ती परसेंटेज में नहीं बढ़ती है भाई साहब। जब हमने इंडिपेंडेंट हुए 36 करोड़ था, तभी हम बोले कि 20 करोड़ गरीबी है, अभी 40 करोड़ हो गई, मगर तभी 60% गरीबी थी, अभी 30% हो गई। परसेंटेज में देखो गरीबी डाउन हो रही है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। जैसे आप बिजू वर्गीय साहब ने बोला था आपका 800 या तो फिर जॉइंट फैमिली में हो अभी भी, तो आप किस मूल्य पे या फिलॉसफी पे वो चला रहे हो? क्योंकि आजकल ज़माने में किसी को पेशेंस नहीं है या तो फिर अपना आपका जीवन चाहता है। उसके भाई अंदर भी डोंगरे जी महाराज आते हैं। डोंगरे जी महाराज बोलते हैं जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा कर सकते नहीं है। अगर कोई माने भाई को छोड़ के कि मैं देश सेवा और देव सेवा कर रहा हूं तो उनकी भक्ति नहीं है, ब्रह्मणा है। ये उनकी एक सेंटेंस था। मेरे को लगा कि मेरा भाई, मैं अभी फॉरेन जाऊं, मेरा 2 भाई खेत में काम गांव में करे, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनको बुलाने में 5 साल लगा, क्योंकि गांव में किसी को मोटरसाइकिल नहीं, मेरा भाई के पास मोटरसाइकिल। मेरे को बोला भाई मैं सूरत क्यों आऊँ, यहाँ मैं गांव का राजा, मैं सूरत आऊँ तो तेरी पास मेरे को पैसा लेने का, तो मैं क्यों आऊँ मांगने को, मैं नहीं आऊँगा। सोच सोच समझ कर उनको समझाया और लाया और यहाँ आके उसका स्टेबल किया। फिर हम 5 भाई ने मिलके, एक भाई ने हर साल उठाया। मेरा फादर 4 भाई, उनका 17 भाई, हम 4 से 17, हम 5 भाई रियल, बट कजिन ब्रदर वी आर 17। हमारा 17 के नीचे 39। तो जो मेरा लड़का है श्रेयांश, ये 39 नंबर, श्रेयांश उभो था, ये मेरा सन है, वो 39 नंबर लास्ट नंबर। तो ये हमारा फैमिली जो है, उनके बाद में तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो 72 हो गए हैं, उनके बाद में भी जनरेशन शुरू हो गए हैं। तो ये जो फैमिली है, तो ऐसे करके हमने 77 में मैंने नियम बनाया कि हम 17 भाई और 13 बहनों, 30 से 30 हम कैसे बिजनेस में एडजस्ट होवे, एक सरीखा होवे। उनके घर लगन मैरिज आवे और मैं उनको लाख रुपया दूं और उनका मैरिज उनकी लड़के का करे, वो मेरे को नहीं चाहिए, खुद का पैसे वो करना चाहिए। तो हमने प्लान बनाया और सब भाई ने मिलके एवरी ईयर्स 1, 2, 3 भाई को उठाना, एक कोई मटेरियल दिवाले, एक पैसा दे, एक उनको सपोर्ट दे, ईल दे। ऐसा करके हम लोगों ने, जो मेरा सोच था वो 2000 में हमारा पूरा हुआ, 23 साल के बाद, के 70 भाई और 30 बहनों, 30 से 30 को खुद का बंगला, खुद की कार और खुद का बिजनेस।
तो एक करके पूरा फैमिली एक हो गए, तो वो मेरा विरोध नहीं करेंगे क्यों, हमारी साथ जो चलता है। अपने को भाइयों में प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी अमेरिका गया था, डलास में इतना बड़ा मिलियन ऑफ मिलियन, और चाचा भतीजा नहीं बोलते, क्योंकि भतीजा ये 3 साल में एक बार फंक्शन होता है सौराष्ट्र पाटीदार का, तो भतीजा वहां मेन था, तो चाचा क्रूज में घूमने को चला गया, 3000 लोग आवे, उसको मुंह क्या दिखावे, तो चाचा आया ही नहीं और वो चला, क्यों कि चाचा भतीजा को संबंध नहीं था। ये बात है कि हम कीमत, मूल्य को छोड़ के कीमत को पकड़ रखते हैं, अपने उनको दया आती है। आप सब लोग पहचानते हैं, सौराष्ट्र की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं दूंगा, तो वो मेरा फ्रेंड था, उनका फादर था, वो धाम में गया, 5-6 साल हो गया, उनका लड़का आज इतना झगड़ता है, 7-8 केस सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। तो अभी जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, એટલે विपरीत बुद्धि हो गई, उनको कोर्ट खा जाएगी, क्यों, आदमी मर जाता है, कोर्ट जिंदा रहती है, कोर्ट कभी मरती नहीं। तो मेरे को एक भाई ने, मैं जब 14 साल का था तो एक सेंटेंस किया, अपना सचिव था यहाँ का, और वो एक, अभी बात टाइम नहीं, मैं नहीं बोलूंगा मगर इतना ही बोलूंगा, उसने मेरे को ऐसा किया कि छोकरा तू बहुत छोटा है मगर मेरे को लगता है कि वो तू विचारक है, तो मेरी एक बात पूरी जिंदगी याद रखने का कि कभी भी कोर्ट मत जाने का, अगर कोई ले जाए और जाना पड़े वो बात अलग है, मगर इसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो करने का, मगर तू कभी भी, पहला तू कोर्ट में कभी मत जाना, क्यों कि अपने आदमी मर जाता है, कोर्ट जिंदा रहती। मैं कोर्ट का आदमी इसलिए बोलता हूं, तू कभी भी कोर्ट में मत जाना, कोर्ट में जो गया छो मर गया। काका जी, काका जी ऐसा समय बहुत हो गया, हाँ, साहिब का परमिशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, परमिशन। काका जी, लगता है आपने व्यापार के साथ साथ मानवता की सेवा को भी अपना कर्म बना रखा है, और जैसा कि आपने कहा कि 10% आप अलग करके रखते हैं अपने मुनाफे में से, तो ये जब मुनाफा आता है उसमें से 10% निकालने के बाद आप फैसला करते हैं कि इस साल ये काम करना है, या आपने पहले से कुछ लक्ष्य बना रखा है मानवता के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। मैं आपको भी प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो रास्ता है वो मेरे को सही लगा है, सबको सबका रास्ता सही लगता है, मगर आपको ये, आप भी यही रास्ते में जावे ऐसा मेरा भी सोच है। मैं प्रेजेंट में जीने वाला आदमी हूं, मैं भूतकाल को भूल जाऊं और फ्यूचर की कोई चिंता मत करो, वर्तमान को सुधार लो। तो प्रेजेंट का मैं एक सोच रखता हूं कि जो आदमी का प्रेजेंट अच्छा है उनका फ्यूचर अच्छा ही होता है, दूसरा कुछ नहीं। और भूतकाल हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उनकी हम चिंता क्यों करें। तो आप बोलते ऐसे, हम ऐसा कोई प्लान नहीं बनाते, भगवान ही प्लान बनाते जाते, रास्ता खुलते जाते, कर भला तो हो भला। सॉरी, आपका सबका टाइम ज्यादा ले लिया, माफ करने का, क्योंकि जो समय को नहीं पहचान सके वो भगवान को कभी पहचान सकता नहीं। तो मैंने आपका ऊपर एक इतना तो अपराध किया है कि आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, मेरे को भान नहीं रहा, तो माफ करने का। और मेरे पास यहाँ जो अच्छा बुलाया है वो भगवान ने बुलाया है, और अच्छा लगा है तो आप उसको जैसे अपने अच्छी तरह, आप डायमंड लो, सोना लो, चांदी लो, उसको जैसे संग्रह कर रखते हैं ऐसे रखने का। अगर कोई बात बुरी लगी, आपको हर्ट हुआ है, तो ये मेरी अज्ञानता है, क्षमा याचना करना। और धन्यवाद। I am appreciate कि I taking second time from you. I am very happy, बहुत मैं गौरव से कहता हूँ कि ये अगर बिजू साहब हमको नहीं मिलते तो आपके साथ संयोग नहीं हो सकता, तो ये उनके लिए आप ताली बजाओ। धन्यवाद।